Hello everyone, my name is Sibrin and I am going to teach you mathematics. Students, in the last class we have completed our exercise 8.2's questions and today we will be starting the exercise 8.3's concept. In this particular class, students will be talking about the increase or decrease of percentage, about percentage and some concepts of interest. Alright, so have a look at the first example that we are going to discuss. This is example 14. Reena's mother said, to make idlis, you must take 2 parts rice and 1 part urad dal. Alright, so what percentage of such a mixture would be rice and what percentage would be urad dal? So basically students, in this particular question इसमें बोला गया है कि रीना के मम्मा हैं, उन्होंने बताया है कि इडली कैसे बनती है. ओके, इडली बनाने के लिए हमें 2 पार्ट्स किसके लेने हैं, राइस के, और 1 पार्ट लेना है उड़द दाल का. सो पार्ट्स ऑफ राइस will be 2 parts and the parts of urad dal, it will be of 1 part. Alright students, so basically how many parts we are going to use for making the idli? So total parts is equals to 2 plus 1, that is 3. So we are using 3 parts for making the idli. Alright, so now what we need to do, what percentage of such a mixture would be rice and what percentage would be urad dal. हमें अब ये चीज़ किस में पता है, पार्ट्स में पता है कि हमें 2 पार्ट किसके डालने हैं, राइस के, और 1 पार्ट डालना है उड़द दाल का. बट अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो कि हमें परसेंटेज बताओ कि कितनी परसेंटेज ऑफ राइस डलेगा या फिर कितने परसेंटेज ऑफ उड़द दाल डलेगा, उस केस में हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, वी वॉन्ट टू फाइंड फर्स्टली the percentage of rice. Okay, so how many parts of rice are there? Percentage of rice, firstly we want to calculate this thing. The parts of rice uses 2 upon the total parts. Total parts is equals to 3. Now we have to multiply it by 100 over 100. Alright, because we know that if we want to change something into the percentage, what we need to do, we'll multiply that particular thing on its numerator and denominator by 100 and 100. Alright, so now students have a look. 200 upon 3 into 1 upon 100. Students, 200 upon 3 is 66.66. Alright, so it is 66.67. Alright, upon 100. So students, the parts of rice, that is 2 out of 3, will be having the percentage form of 66.67%. Alright, so this is the percentage of rice that will be used for making the idli. Alright students, now we need to find out what percentage will be the urad dal. Alright, so have a look students. अब उड़द दाल के अंदर कितने परसेंटेज यूज़ होगी, देखिए. फॉर मेकिंग उड़द दाल, परसेंटेज उड़द दाल, हम उड़द दाल का 1 पार्ट डालने वाले हैं. टोटल पार्ट्स कितने हैं, 3 into 100 over 100, because we want to convert this thing into the percentage. Alright, so now students, this is 100 upon 3 into 1 upon 100. We know that 100 upon 3 is, this thing is 33.33% upon 100. So students, this will turn out to be 33.33%. तो अगर हमें इडली बनानी है तो कितने पोर्शन राइस का डलेगा, 2 पोर्शन आउट ऑफ 3 and 1 portion out of 3 of urad dal. But if I'm talking about in the form of percentage, then 66.67% will be used of rice and 33.33% would be of urad dal. Alright students, and this is your example number 1. Looking at the next example students, what is that? So students, next example, if 250 is to be divided among Raju, Ravi and Roy. अब हमने ये 250 रुपीज़ को इन तीनों बॉयज़ में डिवाइड करना है, ठीक है, और इसमें रॉय में, राइट. सो बेसिकली सो दैट रवि गेट्स 2 पार्ट्स. ओके, अब 250 को डिवाइड करना है राजू, रवि और रॉय में, राइट स्टूडेंट्स. रवि इज गेटिंग 2 पार्ट्स. रवि को कितने पार्ट मिल रहे हैं, 2 पार्ट्स मिल रहे हैं. राजू को कितने पार्ट्स मिल रहे हैं, 3 पार्ट्स. ओके,
and Roy 5 parts. Roy को मिल रहे हैं 5 parts. How much money will each get? What will it be in percentages? सबसे पहले तो हमें बताना है कि हर एक को कितने कितने रुपए मिल रहे हैं, प्लस इसी चीज़ को हम बताएंगे कि इनको परसेंटेज फॉर्म में कितने रुपए मिल रहे हैं. All right students, so we'll solve this question in 2 parts. Firstly, we'll be talking about how much money will each get. Firstly, we are solving this particular part. In this, students, look at the parts that Ravi is getting 2 parts. Look at the part that Raju is getting 3 parts, and look at the parts that Roy is getting 5 parts. So how many total parts are there? 2 plus 3, 5, 5 plus 5, 10. So total parts is equals to 10. Now students will be talking about how much money will Ravi get. Okay, so Ravi will get how many parts? 2 parts. Out of how many parts? 10 parts. So Ravi will get 2 upon 10. मतलब 2 upon 10 उसको पोर्शन मिल रहा है. So 2 upon 10 will be 1 upon 5. Okay, it can be written as 1 upon 5. किसका 1 upon 5? 250 rupees का 1 upon 5. All right students, तो Ravi will get 250 into 1 upon 5. Okay, so 250 and 5 will be cancelled out on the table of 5, on the table of 50. So Ravi को कितने रुपए मिलेंगे? 50 rupees. All right students, so in this particular question Ravi को कितने रुपए मिलेंगे students? 50 rupees. So Ravi will get 50. All right, now we'll be talking about Raju. अब देखिए students, Raju will get, अब राजू को out of 3 कितने पार्ट्स, out of 10 कितने पार्ट्स मिल रहे हैं? 3 पार्ट्स. ओके, और टोटल पैसे कितने हैं? 250. उसको 250 रुपीज़ का 3 upon 10th पोर्शन मिलेगा. 0 will be cancelled out from the 0. Okay, and 3 into 25 is equals to 75 rupees. Okay, so how much money will Raju get? He'll get 75 rupees. All right students, Raju will get 75 rupees. Have a look students here. Next, we'll be talking about the money that Roy will be getting. Roy will get 5 out of 10 parts. All right students, of 250 rupees. 0 and 0 will be cancelled out. 5 into 25 is equals to 125 rupees. तो रॉय को कितने पैसे मिलेंगे स्टूडेंट्स? रुपीज़ 125. तो इस क्वेश्चन में देखिए पहले क्या पूछा था? हाउ मच मनी विल ईच गेट? रवि विल गेट 50 रुपीज़, राजू विल गेट 75 रुपीज़ एंड रॉय विल गेट 125 रुपीज़. So students, the first part is now solved. Now we have to look at the second part. What will it be in percentages? Okay, कि ये जो हम बता रहे हैं ये इनमें से सब कितने कितने परसेंट होंगे. All right students, so firstly रवि की ही बात करते हैं. रवि's part in percentage. Okay, रवि को 50 रुपीज़ मिल रहे हैं. कितने में से? 250 में से. रवि को कितना मिल रहा है? 50. टोटल पैसे कितने हैं? 250 into 100 upon 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. राइट स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ लुक स्टूडेंट्स. This 0 and this 0 will be cancelled out. 5 and 25 will be cancelled out on the table of 5. This 5 and this 100 will be cancelled out on the table of 20, as 20 into 5 is equals to 100. So this is 20 and this is 20 upon 100. So students, this is 20%. So अब रवि को कितना परसेंट मिल रहा है टोटल पैसे का? 20%. कितना मिल रहा है? 20%. This is the percentage part of Ravi. Now we'll be talking about Raju. Okay, Raju's part we have to see. Raju's part in percentage. All right students, now students, Raju is getting 75 rupees out of 250 rupees.
into 100 upon 100, right? 0 and 0 will be cancelled out, students. Okay, 25 के टेबल पे 75 3 पे कटेगा, all right, क्योंकि 25 into 3 is equals to 75. Now students, 3 into 10 upon 100. 3 into 10 is equals to 30. 30 upon 100. 30 upon 100 is 30%. So अब बताइए कि राजू को कितना पार्ट मिलेगा? राजू will get 30% of the total rupees. Alright. Now we'll be talking for Roy. Alright students. Roy को कितना पार्ट मिलेगा? Roy's part in percentage. So students, Roy will get 125 rupees out of 250 rupees into 100 upon 100. 0 and 0 will be cancelled out. On the table of 25, 25 into 5 is equals to 125. So this will be cancelled out on the table of 5. 5 into 10 upon 100. 5 into 10 is 50. 50 upon 100, that is 50%. Alright students, and this is the part that belongs to Roy. So Roy will be getting 50% of the total money. Alright students, looking at the next thing that we are going to discuss, we'll be discussing for the increase or decrease as percent. कई बार क्या होता है students, किसी question के अंदर हमें बोला जाता है कि for example इस class में firstly students थे 100% और अगले साल इसके अंदर का enrollment जो है वो 10% increase हुआ है, तो हमें वैसे नहीं पता कि कितने बच्चे बढ़े हैं, लेकिन हमें किस फॉर्म में पता है कि जो हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो 10% बढ़े हैं. तो समटाइम्स इन द क्वेश्चन इट इज़ मेंशन टू अस दैट देयर इज़ इंक्रीज और सम डिक्रीज इन द परसेंटेज फॉर्म. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो देयर आर टाइम्स व्हेन वी नीड टू नो द इंक्रीज और डिक्रीज इन अ सर्टेन क्वांटिटी एज परसेंटेज. कई बार हमें पता भी लगाना होता है और कई बार हमें क्वेश्चन भी इस फॉर्म में दे रखा होता है जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है परसेंटेज का, बट वी हैव टू फाइंड द डाटा और ऑन द बेसिस ऑफ डाटा वी हैव टू टेल दिस थिंग व्हाट काइंड ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इज देयर इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखी है कि एक स्टेट है, वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है 550, मतलब बेसिकली 5,50,000 से लेके 6,05,000 तक, मतलब इंक्रीज़ हो रही है ना. पहले 5,50,000 थी और अब वो 6,05,000 है. ऑलराइट, तो इंक्रीज़ कर रहा है वो. एक हमें बताना पड़ेगा कि कितना इंक्रीज़ कर रहा है, 55,000. और एक हमें यहाँ से दे रखा है कि देयर इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन दैट इज़ 10%. कितना इंक्रीज़ हो रहा है पॉपुलेशन में? 10%. तो इस केस में sometimes it is more convenient for all of us to say in the form of percentage. All right, so then the increase in the population can be understood better if we say the population is increased by 10%. All right students, so we'll be discussing the question based upon this. Okay, so the first example based upon this increase or decrease is a school team won 6 games this year against 4 games won last year. एक स्कूल के अंदर एक टीम है जिसने इस साल कितने मैचेस जीते हैं, कितनी गेम्स जीती हैं? 6 गेम्स. जबकि इसने लास्ट ईयर कितनी गेम्स जीती थी? 4 गेम्स. ओके, गेम्स दैट आर वन टुडे इज 6 एंड गेम्स दैट आर वन लास्ट ईयर इज 4. सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज? सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जब भी हमें कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें हमें परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दे रखा हो, निकालना हो, तो हम हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग निकालते हैं. ठीक है, इस बार वाले के अकॉर्डिंग नहीं, पहले कितना था उसके अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले हमने 4 गेम्स जीती थी ना, तो हम 4 के अकॉर्डिंग निकालेंगे. अगर हमें बोला होता कि पहले तो हमने 4 गेम्स जीती लेकिन इस बार हमने 6 गेम जीती, यही तो दे रखा है ना यहाँ पे, तो हम जो भी चेंज निकालेंगे वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि सेकंड के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होगा. चेंज कोई भी चीज़ हम बताते हैं तो वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मेंशन इट लाइक दैट, गेम्स वन दिस ईयर इज इक्वल्स टू 6, games won last year is equals to 4.
अब 4 के अकॉर्डिंग बताएंगे मोर, कितनी और एक्स्ट्रा हमने जीती. गेम्स 1 more, that is increased. 4 minus 6 minus 4, that is 2. मतलब 2 गेम्स हमने और ज़्यादा जीती ना. तो अगर हमें बताना हो परसेंट इंक्रीज, इसके हम कैसे देखेंगे, कितनी गेम ज़्यादा जीती, 2 गेम्स. पहले कितनी जीती थी, 4 into 100/100. All right students, into 100/100. So this 2 and this 4 will be cancelled out on the table of 2 as 2 into 2 is equals to 4. तो यहाँ पे 2 आया, 2 और 100 कटेंगे आपस में 50 की टेबल पे. ओके, as 50 into 2 is equals to 100. ओके, so this is 50/100. और हमें पता है स्टूडेंट्स 50/100 क्या होता है, 50%. ऑल राइट, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज हुआ. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल. अब स्टूडेंट्स अगर इसी एग्जाम्पल को मैं आपको मोल्ड करके समझाऊं, ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा हो कि बच्चों हमें पता है कि हमने लास्ट टाइम 4 गेम्स जीती थी. ठीक है, और हमें पता है कि इस बार जो हमने गेम्स जीती हैं वो उससे 50% ज़्यादा जीती हैं. ठीक है, वी हैव won 50% मोर गेम्स देन द प्रीवियस ईयर. तो हम उस केस में ये निकाल सकते हैं कि इस साल हमने कितनी जीती. कैसे, पिछली बार कितनी जीती थी, 4. अब उसका 50% ज़्यादा जीती हैं, मतलब 50% मतलब 50/100. मतलब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा जो हमने जीती हैं वो है. तो 50/100 इज़ 1/2. अब ये 2 और 4 के टेबल में कट जाएगा 2. मतलब इस साल कितनी एक्स्ट्रा जीती हमने, 6 एक्स्ट्रा जीती, 2 एक्स्ट्रा जीती. पहले कितनी जीती थी, 4. अब कितनी जीती हैं, 2 एक्स्ट्रा. तो मतलब इस साल कितनी जीती हमने, 6. ओके, इस तरह से आप ये चीज़ भी निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है. क्या है ये, एग्जाम्पल 17. द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन्स इन अ कंट्री डिक्रीज्ड फ्रॉम 150 lakhs to 100 lakhs in 10 years. What is the percentage of decrease? ये बोला हुआ है कि एक कंट्री है, उसके अंदर पहले 150 लाख जो लोग थे वो इलिटरेट थे, और अब 10 साल के बाद वहाँ पे 100 lakhs इलिटरेट लोग हैं. ठीक है, आफ्टर 10 years और इन 10 years. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज. सबसे पहले तो नॉर्मल डेटा के अंदर हम देखेंगे डिक्रीज्ड कितना है, डिक्रीज 150 lakhs में से माइनस क्या किया हमने, 100 lakhs. डिक्रीज कितना है, 50 लाख, मतलब 50 लाख का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज. अब ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि जब भी इस टाइप का कोई चीज़ करनी होती है, परसेंटेज डिक्रीज, तो हम वो पहले वाले के अकॉर्डिंग करते हैं कि अब वाले के अकॉर्डिंग करते हैं, पहले वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी चेंज जो होगा वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग देख के होगा. ठीक है, तो पहले कितने थे इलिटरेट लोग, 150 lakhs. ओके, तो कम कितने हो रहे हैं इलिटरेट लोग, 50 lakhs. पहले कितने थे, 150 lakhs इंटू 100/100. ओके, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है. लाख और लाख कैंसिल हो गया, 50 और 150 3 के टेबल पे कट होगा. 50 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 150. ओके, सो स्टूडेंट्स 1/3 इंटू 100/100. अब यहाँ से देखिए 100/3 क्या होता है, 33.33. ओके, सो दिस इज 33.33/100. अब हमें परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज कितना होगा, 33.33%. ठीक है, कि मतलब एक कंट्री थी, वहाँ पे अगर 150 लाख इलिटरेट लोग थे, तो अब उसी कंट्री में कितने कम हो गए इलिटरेट लोग, 33.33% लोग अब इलिटरेट नहीं हैं वहाँ पे. ठीक है स्टूडेंट्स, so students looking at the next thing what we are going to discuss that prices related to an item or buying and selling. कि हम अगर एक चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट में जाके, तो उसके प्राइजेस कैसे कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं. ठीक है, उसको कैसे हम बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, और उससे टर्म्स रिलेटेड क्या होते हैं वो देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड यू बाय समथिंग, ओके, जब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट जाके, सो व्हेन वी आर बाइंग समथिंग, दैट द कॉस्ट जिस पे हमें वो मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड
cost price. Okay, the buying price of any item is called cost price. और cost price को हम क्या लिख देते हैं? CP. Cost का C, price का P. Okay, CP. All right. And when we are going to any market and we want to sell something, कुछ चीज़ बेच रहे हैं हम, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन था, वो पेन मैंने मार्केट से परचेज किया था 10 रुपीज़ में, लेकिन मेरी किसी फ्रेंड को पसंद आ गया. मैं बोल रही हूँ कि हाँ ठीक है तुझे लेना है, 5 रुपीज़ दे दे मुझे, ठीक है. अब मैं उसको कितने रुपए में दे रही हूँ? वो 5 रुपीज़ में. मैंने ख़रीदा कितने में? 10 रुपीज़ में. वो क्या था? कॉस्ट प्राइस, जो मुझे पड़ा उसका कॉस्ट, ठीक है. दैट वॉज माई कॉस्ट प्राइस एंड द प्राइस ऑन विच आई एम सेलिंग इट अप. ओके, जिस पे मैं उसको बेच रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस. ओके, द प्राइस एट विच यू सेल इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस और SP. SP ऑफ सेलिंग का S और प्राइस का P, SP. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, what would you say is better to you sell the item at a lower price, same price or higher price than your buying price? You can decide whether the sale was profitable or not depending upon the CP and SP. So basically यहाँ पे क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी परचेज किया या कुछ भी सेल किया, तो अगर हम उसकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि ये जो डील थी वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल थी या लॉस वाली थी या नो प्रॉफिट नो लॉस वाली थी. हाउ? अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर मैंने कोई पेन लिया 10 रुपये का और उसको बेच दिया 5 रुपीज़ का, तो मुझे कितना नुकसान हुआ? 5 रुपीज़ का ना, क्योंकि मैंने लिया कितने का? 10 रुपीज़ का, और दिया कितने का? 5 रुपीज़ का. तो मुझे 5 रुपीज़ का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पैसे ज़्यादा दिए लेकिन जो मुझे बाद में मिले वो कम मिले. ओके, तो वो होता है लॉस कि ठीक है, हमें CP और SP बेस्ड पता लग गया कि हमें प्रॉफिटेबल हुआ. प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, लॉस मतलब नुकसान, ठीक है. तो मुझे इस डील में नुकसान होता है या फ़ायदा होता है, ये किसको देख के पता चलेगा? ये उसकी CP और SP को देख के पता चलेगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक फ्रूट वेंडर है. ओके, he is selling his fruit, like for example say apple. He is selling the apple to a customer at the rate of 100 rupees per kg, but he has got that apples from the mandi, okay, from the main mandi at the rate of 80 rupees per kg. अब वही फ्रूट वेंडर लेके कितने का आया है? 80 rupees per kg, and he is selling it up at rupees 100 पर kg. ठीक है, तो उसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि वो पर kg पे कितने रुपए बचा रहा है? 20 रुपीज़. सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कोई भी आपकी डील जो है वो प्रॉफिटेबल है, लॉस वाली है या नो प्रॉफिट नो लॉस वाली है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, जैसे देखिए, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि हम जिस रेट पे उसको बेच रहे हैं वो ज़्यादा है किससे? जिस पे हमने उसे ख़रीदा था. ठीक है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, उस केस में प्रॉफिट होता है. जैसे वही फ्रूट वेंडर लीजिए, उसने लिया वो 80 का, दिया कितने का? 100 का. सेलिंग प्राइस ज़्यादा था ना, 100 था, तो उस केस में उसको क्या होगा? प्रॉफिट. और प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? SP माइनस CP के. ऑल राइट स्टूडेंट्स, किसके इक्वल होता है? SP माइनस CP, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे? दिस सिचुएशन इज ऑफ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट जाते हो और आप अपने लिए एक नोटबुक लेके आते हो, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने बोला यार मेरे लिए भी ले आना, और आप 10 रुपीज़ में वो नोटबुक ले रहे हो और उसको 10 रुपीज़ में ही दे रहे हो. ठीक है, आपने कितने में खरीदी? 10 रुपीज़ में. योर कॉस्ट प्राइस इज 10 रुपीज़ एंड यू आर सेलिंग टू योर फ्रेंड एट ₹10. सो बेसिकली देयर इज़ नो लॉस एंड नो प्रॉफिट, क्योंकि ना तो आपकी पॉकेट से 1 रुपया भी गया और ना आपके फ्रेंड से आपने 1 भी रुपया एक्स्ट्रा लिया. ठीक है, तो उस केस में जो सिचुएशन होगी दैट विल बी योर नो लॉस एंड नो प्रॉफिट सिचुएशन. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस. लास्ट केस स्टूडेंट्स आता है जहाँ पे हमने जो खरीदा वो महंगा था रैदर देन उसको बेचने की. ठीक है, तो वो जो डील होती है वो लॉस वाली डील होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट जाते हैं, एक टीवी लेते हैं वहाँ से कितने रुपए का? 10,000 रुपीज़ का. हमने उसको 1 साल यूज़ करने के बाद हम उसको बेच रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं, 5,000 में कर रहे हैं. ख़रीदा कितने का था? 10 में. बेच कितने में रहे हैं? 5,000 में. सो बेसिकली उस केस में कितना नुकसान हो रहा है? 5,000 का नुकसान हो रहा है ना, तो दैट डील विल बी ऑफ लॉस,
ठीक है। अगर किसी केस में CP कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाती है सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में हमें क्या होता है, लॉस होता है, और वो लॉस किसके इक्वल होता है, CP माइनस SP के, ठीक है, CP माइनस SP के। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यही जो क्वेश्चंस होते हैं ये इन CP SP और परसेंटेज बेस पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वेस इज 120 रुपीज़, ठीक है। सो कॉस्ट इज 120 रुपीज़ इफ दिस शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%। मतलब कोई शॉपकीपर है जो उसको अपने लॉस पे बेच रहा है, कितने परसेंट लॉस पे, 10% लॉस पे। सो नाउ वी हैव टू फाइंड एट विच इट इज सॉल्ड। अब उसको कितने रुपए में बेचा गया ये बताना है। फर्स्टली स्टूडेंट्स, CP ऑफ फ्लावर वेस इट इज इक्वल्स टू ₹120। लॉस कितना दे रखा है, 10%। नाउ बच्चों एक बात याद रखो, अगर कभी भी हमें प्रॉफिट या लॉस का परसेंट बता रखा हो तो वो हमेशा हम किस पे अप्लाई करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, हमेशा, ठीक है। वो किस पे अप्लाई होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब लॉस सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि लॉस किस पे हो रहा है, ठीक है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज में दे रखा है, अब हम क्या निकालेंगे, लॉस रुपीज में, ठीक है। 120 रुपीज़ का था जिसपे हमें कितना परसेंट लॉस हो रहा है, 10%। मतलब इसका 10%, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12 रुपीज़, ओके। तो मतलब लॉस कितना आ गया बच्चों, 12 रुपीज़, 12 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो अब तो हम कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, CP माइनस लॉस के, ठीक है। बिकॉज हमें पता है कि लॉस किसके इक्वल होता है, CP माइनस SP के, तो SP का किसके इक्वल होगा, CP माइनस लॉस के। तो कॉस्ट प्राइस अगर 120 रुपीज़ था, लॉस हमें 12 रुपीज़ का हो रहा है, तो SP कितना आ जाएगा, 108 रुपीज़। मतलब उसने कोई चीज़ खरीदी तो थी 120 की, बट वो बेच कितने में रहा है, वो सेल कितने में कर रहा है, 108 रुपीज़ में, एंड दैट इज़ वाई ही इज सफरिंग फ्रॉम लॉस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लुकिंग एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन इट, selling price of a toy car is ₹540, okay. If the profit made by the shopkeeper is 20%, then what is the cost price of this toy? अब वो बोल रहा है कि एक टॉय खरीदा है, ठीक है, कितने रुपए में हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये बता रखा है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 540। और ये जो डील है ये कितने की डील है, 20% प्रॉफिट की डील है। तो अब हमें बताना क्या है, CP। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स, इस केस में हम CP को कंसिडर करते हैं। CP ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू X रुपीज़, ठीक है। X रुपये में सपोज हमने टॉय खरीदा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। अब पहले हम बताएंगे प्रॉफिट इन रुपीज़, ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है रुपीज़ के अंदर। सो उस X का 20% हमें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, उस X का 20% हमें फ़ायदा हो रहा है। और अगर हमें उस 10X का 20% फ़ायदा हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 540, ठीक है। 540 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ये वो अमाउंट है, एक तो कॉस्ट प्राइस प्लस उसका प्रॉफिट, ओके, इसका प्रॉफिट, दैट इज X, 0 से 0 कट गया, 2 और 10 5 के टेबल पे कट गया। सो दिस इज X अपॉन 5। मतलब सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, एक तो कॉस्ट प्राइस के प्लस ये क्या है, कॉस्ट प्राइस हमने माना है, और ये क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्या होता है प्रॉफिट, बताइए, SP माइनस CP तो होता है ना। तो अगर इस केस में हमें प्रॉफिट निकालना हो या फॉर एग्जांपल SP निकालना हो तो SP किसके इक्वल आएगा, कॉस्ट प्राइस को उधर ले जाएंगे, दैट इज P प्लस CP, राइट, ऐसे तो निकलता है, ठीक है। तो इधर देखिए 540 इज इक्वल्स टू X प्लस X अपॉन 5, यहाँ पे 5 लेंगे LCM के अंदर, दिस इज 5 इन 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 will be multiplied to this 5x plus x, okay, is equals to 540. So students, 540 is equals to 6x upon 5, okay. अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, इसको ये 5 डिवाइड में है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो 540 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 6x। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ, तो हम इसको वहाँ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना,
6 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 54. तो ये कितना आ जाएगा 90 की टेबल पे. सो x इज इक्वल्स टू 90 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 450 रुपीज़. अब ये 450 क्या है स्टूडेंट्स? ये इसका कॉस्ट प्राइस है. दिस इज इट्स कॉस्ट प्राइस. ओके, विच इज इक्वल्स टू रुपीज़ 450. और यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या था. ऑलराइट, लुकिंग एट द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टूडेंट्स, चार्ज गिवन ऑन बोरोड money or simple interest. What is that students? Sometimes it is like that we need some money, so we borrow some money from our friends. All right, so have a look, have an example like this. A certain person is coming to your class. He wants to sell his magazines or drawing book, right? So he is asking from you 10 rupees per magazine. You are not carrying money because you have already spent that in the canteen eating samosa, but you actually want to buy that magazine or the drawing book. So you ask your friend, can you please give me rupees 10, I'll return it tomorrow. All right, so sometimes we need to borrow some money for any kind of use. So students, at that particular point when we are borrowing some money from any person, they can also say that I can give you that money but on some interest. कि अगर आपका फ्रेंड बोले ठीक है देखो मैं भी 10 रुपये दे देता हूँ तो मुझे कल 11 दे देना, तो वो 1 रुपीज़ जो आपने एक्स्ट्रा दिया वो क्या दिया? उसके इंटरेस्ट का दिया. ठीक है, मतलब आपने जो पैसा लिया था, जो आपने रुपये लिए थे, बोरो किए थे, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट उसके ऊपर आप एक इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो. ठीक है, दैट इज़ द बोरिंग ऑफ मनी और द सिंपल इंटरेस्ट. ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का ही एक क्वेश्चन. Anita takes a loan of rupees 5,000 at 15% per year as rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of 1 year. अब अनीता ने क्या किया है स्टूडेंट्स? एक लोन लिया है, 5,000 रुपीज़ उसने किसी से लिए हैं. ठीक है, कितने परसेंट इंटरेस्ट पे? 15% पर ईयर के इंटरेस्ट पे. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है. तो अब हमें बताना है कि फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ वन ईयर. अब उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा 1 साल के बाद, हमें ये बताना है. इंटरेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? वो अमाउंट जो आप पे करते हो उसको बोरो करने के लिए, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट. और हर एक इंटरेस्ट का एक अलग अलग रेट होता है. यहाँ पे कितना दे रखा है? वो 15% दे रखा है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 15% पर ईयर एंड she has took the loan of 5,000. so principal कितना है? ₹5,000. मतलब उसने कितने रुपए उधार लिए हैं? 5,000 रुपीज़. सो स्टूडेंट, इंटरेस्ट निकालना है ना हमें, इंटरेस्ट इन रुपीज़ निकालना है. ऑलराइट, तो वो किसके इक्वल होगा? प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट जो परसेंटेज में दे रखा होगा. ठीक है, दैट इज 5,000 इंटू 15%. 5,000 का 15% उसको क्या देना पड़ेगा? एज इंटरेस्ट. ओके, तो 20 से 20 कट गई. 50 इंटू 15 स्टूडेंट्स, 50 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 75 एंड 10. तो उसको 1 साल के बाद कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 750 रुपीज़. ऑलराइट, 1 साल के बाद अनीता को 750 रुपीज़ देने पड़ेंगे एज द इंटरेस्ट. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये क्या था हमारा? इंटरेस्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट फॉर मल्टीपल ईयर्स. अगर हम कोई भी अमाउंट बोरो करते हैं, कोई भी प्रिंसिपल या किसी सम को बोरो करते हैं कुछ साल के लिए, मल्टीपल ईयर्स के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, मतलब आपने कितना अमाउंट लिया, कितने रेट पे लिया और कितने टाइम के लिए लिया, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन 100. ये 100 क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, ये 100% का ही है. ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या था? मतलब आपने कितना अमाउंट लिया, ठीक है, कितना सम बोरो किया, किस रेट पे किया और कितने टाइम के लिए किया. वे पी क्या है? सम बोरोड, दैट इज प्रिंसिपल. आर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड टी इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ बोरिंग. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एंड एसआई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा.
सो स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला रहता है जो आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आपको ये इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करना है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो इसी पे बेस्ड है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए, इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 750 रुपीज फॉर 2 years ऑन अ सम ऑफ 4500 रुपीज, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि मनोहर ने सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया, 750 रुपीज़ दिया. कितने टाइम के लिए लिया, 2 years के लिए लिया था उसने, कोई भी जो लोन लिया था. कितने, प्रिंसिपल क्या था, मतलब कितने रुपए उसने लिए थे, 4500. अब हमें बताना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, मतलब रेट बताना है परसेंटेज में. ओके, तो हमें क्या क्या दे रखा है बताइए. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100. राइट स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें पता है ना. अब इसके अकॉर्डिंग हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 750 रुपीज़. प्रिंसिपल कितना है, 4500. रेट, यही तो हमें बताना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो बताना है यहाँ पे. तो रेट हमें बताना है, टाइम कितना दे रखा है, 2 years अपॉन 100. ओके, 20 से 20 कट गए स्टूडेंट्स. ठीक है, सो 45 इंटू R इंटू 2 इज इक्वल्स टू 750. नाउ स्टूडेंट्स, 45 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 90. 90 मल्टीप्लाई बाय रेट इज इक्वल्स टू 450. अब ये रेट क्या है, कोई भी वेरिएबल है ना, कोई इसकी वैल्यू निकालनी है. इस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए 90 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. 90 R के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे क्या बन जाएगा, डिवाइड में. सो 450 अपॉन 90 इज इक्वल्स टू रेट. So students, rate is equals to 0 will be cancelled out from the 0. 45 upon 9. Now students, rate is equals to 5 because 5 into 9 is equals to 45. So rate of interest क्या जाएगा, 5%. Okay, so students, the rate of interest is 5%. Alright students, and this is all about the exercise 8.3's examples. In the next class we'll be discussing the questions related to this particular exercise. Till then students, do practice hard at your home. We'll be meeting in your next class, discussing and practicing some more questions of this particular concept. Have a nice day all of you. Bye bye.